हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 157। 157 आज पढ़ती हूँ मैं। कल मैंने पढ़ा था 152, 153, 154, 156, 155 एंड 156 आर्टिकल्स। तो चलें स्टार्ट करें। आज मैं पढ़ूंगी 160, 157। तो चले। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं। क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 157। क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। No person shall be eligible for appointment as governor unless he is a citizen of India and has completed the age of 35 years. 158 क्या कहता है? कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। नंबर 1, द गवर्नर shall not be a member of either house or parliament. Number 1, the governor shall not be a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state specified in the first schedule, and if a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any such state be appointed governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as governor. Number 2, the governor shall not hold any office of profit, and governor shall be entitled without payment or of rent to the use of his official residences. क्या है? नंबर 2, द गवर्नर शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड नंबर 3, द गवर्नर शेल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंसेस. And shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and the privileges as are specified in the second schedule. Number 3A, where the same person is appointed as governor of 2 or more states, the emoluments and the allowances payable to the governor shall be allocated among the seats in such proportion as the president may by order determine. Number 4, the emoluments and the allowances of the governor shall not be diminished during his term of office. 159, oath or affirmation by the governor. राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान. Every governor and every person discharging the functions of the governor shall before entering upon his office make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the state, or in his absence the senior most judge of that court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say, do swear in the name of God
or solemnly affirm. I.A.B. solemnly affirm or do swear in the name of God or solemnly affirm that I will faithfully execute the office of governor or discharge the functions of the governor of the name of the state and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of name of the state. जिस राज्य का राज्यपाल बनना होता है तो उस राज्य के नाम से उस राज्य का नाम लेते हुए शपथ लेते हैं राज्यपाल जी। तो अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ थोड़ा। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 158 आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल के जो पद की शर्तें हैं वो क्या हैं? नंबर 1, राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। नंबर 2, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नंबर 3, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, यानी बिना किराया दिए फ्री में अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियां, भत्तों, विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो अनुसूची दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। 3 अनुच्छेद नंबर 3 का जहां तक एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल की संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। नंबर 4, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 159 आर्टिकल क्या कहता है? 159 आर्टिकल कहता है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के विषय में। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम यानी सीनियर मोस्ट न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अमुक, अपना नाम लेते हुए राज्यपाल बोलेगा कि मैं श्रद्धापूर्वक राज्य का नाम, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, उस राज्य का नाम लेते हुए राज्यपाल कहेंगे राज्यपाल के पद का कार्यभार अथवा पद का ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अमुक राज्यपाल अपना नाम लेते हुए कि मैं श्रद्धापूर्वक राज्य का नाम के राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का
परिरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण विधि का संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं नाम लेते हुए अपना राज्य का नाम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। तो ये हो गया राज्यपाल का शपथ और प्रतिज्ञान। तो ठीक है दोस्तों, कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और फिर उसके बाद में मंत्रिपरिषद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, और 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 162, 163, 164 को कल पढ़ूंगी। आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक, कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान।